Hello students, welcome back to the second lecture of Kingdom Animalia. In our previous lecture, we studied about the criteria for the classification of the animal on which basis we classify the animals. तो उसमें हम लोगों ने देखे थे कि सेल के बेस पर और बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उनके बेसिस पर, सेगमेंट्स के बेसिस पर किस तरीके से, सिमेट्री के बेसिस पर, देर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज जिसके बेसिस पर हम लोग एनिमल्स को क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. What is the reason for the classification? To make the study, to make the understanding more easy. ठीक है? So now today we are going to start the actual classification of the animal. So this is a classification of the kingdom Animalia according to your syllabus. आपके syllabus में ये इतने ही parts को cover किया गया है. Otherwise this classification is in much more detail. अगर आप higher studies करते हो इस आगे जा कर के तो you will see कि इससे भी कहीं ज़्यादा क्या है, classification जो है detail में है. So the major criteria for the classification of the animal is they are classified into two phylums, non-chordata and chordata, on the basis of presence or absence of the notochord. They are classified into chordates and non-chordates on the basis of the presence of what? Presence of notochord. Notochord अगर present होगी, they will be chordata. ठीक है, नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट होगी देन दे विल बी नॉन कॉर्डेट्स. ओके, व्हाट इज नोटोकॉर्ड? Notochord is a special type of a tissue which is present at the embryonic stage, which later develops into the vertebral column in vertebrata, and in Urochordata and Cephalochordata the notochord is present but वो vertebral column में जो है वो convert नहीं होती है. But अगर notochord present है then the animal is from this chordata phylum. And if the notochord is absent, notochord present नहीं है, then the animal belongs to the non-chordata. ठीक है, non-chordata is simplest type. ठीक है, बॉडी की अगर डिवीजन की बात करते हो, ऑर्गन सिस्टम वगैरह की अगर आप बात करते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कॉर्डेटा में जाते हुए क्या होती है और ज्यादा होने लगती है. नॉन कॉर्डेट्स में जो होती है वो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है टिश्यूज की, ऑर्गन की और ऑर्गन सिस्टम्स की, वो थोड़ी सी कम होती है. सो द फर्स्ट फाइलम इन द नोटोकॉर्डेटा इज पोरीफेरा. द एग्जाम्पल इज साइकॉन. ठीक है, we are going to study all these phylums in detail, but you have to remember this chart. Okay, the first phylum in the kingdom Animalia which you will study is the phylum Porifera, and the example is Cycon. कौन सा animal है ये? Cycon. It belongs to the Porifera. Later you will see the images तो आपको और चीजें clear होगी. The second phylum is the Cnidaria. Cnidaria को Coelenterata भी कहा जाता है. Jellyfish belongs to this phylum. The third one is the Ctenophora. Ctenophora comb jelly belongs to this phylum. Fourth one is Platyhelminthes. Liver fluke belongs to this. Esculmens, Ascaris, Annelida, earthworm, Arthropoda, crab, mollusca, pila, snail, dentalium, octopus. They all belongs to this mollusca. Echinodermata, starfish, sea urchin, sea cucumber. They all belongs to this Echinodermata. The last one is the Hemichordata. Balanoglossus, Secundglossus, they all belongs to this Hemichordata. So they are all without a notochord. They are non-chordates. इनके पास में ये जितने भी फाइलम है, इसमें जितने भी एनिमल्स हम पढ़ने वाले हैं, 1000 मिलियंस जितने भी एनिमल्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ये जो सारे होंगे इनके अंदर क्या होगा, नोटोकॉर्ड जो होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगी. किसी भी लाइफ के स्टेज में नोटोकॉर्ड जो होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट नहीं होगी. ठीक है, देन the next category is phylum chordata. Chordata means they will have the presence of notochord. Okay, ये जो notochord होती है embryonic stage में present होती है, जो आगे जाकर के
किस में कन्वर्ट होगी, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट होती है. सो हियर इट इज अगेन कैटेगराइज इनटू यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. सो इन यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, ये जो दो आप यहाँ पर सब फाइलम्स पढ़ने वाले, डिविजन्स पढ़ने वाले हैं, तो इसमें कैसा होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यू विल सी द नोटोकॉर्ड, ठीक है. इसके लार्वे के टेल में कुछ स्टेज तक जो होता है वो क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, आगे जो होता है वो क्या होता है, वो डीजेनरेट हो जाता है. बट इन केस ऑफ सेफेलोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड जो होती है वो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है, बट इट नेवर कन्वर्ट्स इनटू द वर्टिब्रल कॉलम. सो दे हैव नोटोकॉर्ड, बट उनमें वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट जो है वो क्या है, नहीं होता है. क्लियर. नेक्स्ट इज द वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा मीन्स प्रेजेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. इनके अंदर क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट होता है. दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, अग्नाथा एंड gnathostomatā. अग्नाथा मीन्स जॉलेस. इसमें क्या होंगे, जॉस जो है वो नहीं होंगे. ये क्या होंगे, जॉलेस एनिमल्स होंगे इसके अंदर. अभी जो है एट प्रेजेंट सिर्फ एक ही लिविंग क्लास जो है वो अग्नाथा से बिलोंग करती है. बाकी जो जितने भी अग्नाथा के और भी क्लासेस थी, वो सारे जो एनिमल्स है वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके. सो द ओनली लिविंग क्लास इज साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें ईल, पेट्रोमाइजोन, जो ये सारे फिशेज आते हैं. एक्चुअली ये फिश नहीं होते, बट हम इनको फिशेस बोलते हैं, लंग फिशेस जिनको हम कहते हैं. तो दे ऑल बिलोंग्स टू अग्नाथा, ठीक है. The next one is the gnathostromata. Gnathostromata मतलब they are having jaws. इनके पास में क्या होता है, jaw present होता है, jaw होते हैं, ठीक है. The gnathostromata is again divided into Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammals. Pisces means all the fishes. जितने भी fishes हम देखते हैं, shark, रोहू और इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, मृगॉल, कटला, पॉम्फ्रेट, दे ऑल बिलोंग्स टू दिस Pisces, ठीक है. अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, कॉन्ड्रिक्टाइस एंड ऑस्टिक्टाइस. इसकी डिटेल क्या है वो हम आगे लेक्चर में कवर करने वाले हैं. देन एम्फीबिया, रेप्टिलिया. एम्फीबिया में फ्रॉग, सैलमेंडर, ये सारी चीजें कवर होने वाली है. रेप्टिलिया में स्नेक्स है, लिजर्ड्स है, क्रोकोडाइल्स है, ये सब कवर होंगे. एव्स, एव्स मतलब सारे बर्ड्स, ईगल, पैरोट, बर्ड्स, ये सब किसमें क्लासिफाई होते हैं, एव्स में, ठीक है. मैमल लास्ट, गोट, और जितने भी हमारे टेट्रापोड्स जो होते हैं, चार पैर वाले एनिमल्स जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, इसके अंदर आते हैं. लायन इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये सारे किस में आते हैं, मैमल में आते हैं. तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल विच यू हैव टू स्टडी, ठीक है. आपके सिलेबस में इतनी चीजें हैं जो आपको कवर करनी है. नाउ वी विल स्टडी each classes or each phylum in detail. So first we are going to study the Porifera, ठीक है. The first classification, the first phylum which we are going to study is the phylum Porifera, ठीक है. This word Porifera is made up of two words, pori plus fera. Pori means pore and ferons means bearing. They are pore bearing animals, ठीक है. They are also known as sponges. इनको क्या बोला जाता है, sponges बोला जाता है. Here you in the diagram you can see इनकी body पर ऐसे छोटे 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 pores होते, holes जैसे होते. That's why they are known as poriferans. आप देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि they are animals. हमको तो ऐसा लगता था शायद ये plants है, but they are not plants, they are animals. Earlier जब classification हो रही थी animals की, काफी पहले तो इनको पहले प्लांट कैटेगरीज में ही रखा गया था, बट लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड कि दे आर नॉट एनिमल. इनके जो दे आर नॉट प्लांट्स, इनके जो कैरेक्टर्स है वो काफी एनिमल से सिमिलर है. तो फिर इनका क्लासिफिकेशन चेंज हुआ और इनको एनिमल्स में जो है इंक्लूड किया गया, ठीक है. नाउ हम उनके बॉडी के बारे में या उनके किस बेस पर हम इनको पॉरीफेरंस बोलते हैं और क्या कैरेक्टर्स होते हैं पॉलीफेरेंस के, ये हमको डिटेल में स्टडी करना है. सबसे पहले हैबिटेट पढ़ने वाले हम. हैबिटेट मीन्स वो रहते कहाँ हैं. सो दे आर एक्वेटिक. एक्वेटिक मतलब ये लोग कहाँ रहने वाले हैं, वाटर में रहने वाले, पानी में रहने वाले. मोस्टली मरीन मतलब कैसे, सॉल्ट वाटर में रहने वाले, समंदर में, ओशन में रहने वाले होते हैं. बट देर आर फ्यू स्पीशीज
जो क्या होती है फ्रेश वाटर से भी बिलोंग करती है, ठीक है। ये सेडेंटरी एनिमल्स होते हैं, फॉर्म्स में जो आप देख सकते हो ये क्या होते हैं, सेडेंटरी एनिमल्स होते हैं, मतलब इनका जो बेस होता है बॉडी का, ठीक है, वो सबस्ट्रेटम से, किसी रॉक से या किसी भी चीज से अटैच रहता है, ठीक है। ये यहाँ से वहां मूव करते हुए घूमते फिरते नहीं होते, ये सेडेंटरी होते हैं, एक जगह रहने वाले। इनका सबस्ट्रेटम जो होता है किसी भी एक बेस से क्या होगा, अटैच होता है। ये मोस्टली कैसा होता है, कॉलोनीज में रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सॉलिटरी भी रहते हैं, ठीक है। बॉडी शेप की अगर बात करते हो तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी असिमेट्रिकल बॉडी होती है। असिमेट्रिकल बॉडी का मतलब पता है ना आपको, आप किसी भी तरह से कट कर लो, किसी भी प्लेन से कट कर लो, यू विल नेवर गेट द इक्वल हाफ, ठीक है। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, कैसा होता है, सेल्स होते हैं बट टिश्यू का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है। सेल्स में मिनिमल डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आपको देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पर आप क्या देखोगे एक चीज कि ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आपने जो पढ़ा था ना सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दे हैव सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनकी जो बॉडी सरफेस होती है, इनकी बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे 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 आप क्या देख सकते हो, पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, ऑस्टिया। यहाँ से वाटर की क्या होती है, एंट्री होती है, ठीक है। वाटर एंटर कहाँ से होता है, वाटर एंटर्स थ्रू दी ऑस्टिया इनटू द बॉडी कैविटी। ये जो इनकी बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है ना, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी बोलते हैं। और बॉडी से ये जो वाटर एंटर हुआ है ऑस्टिया से, वो लीव कहाँ से होता है, ये जो बड़ा सा होल दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। ये ऑस्कुलम से क्या होता है, ये होल से जो है वो वाटर जो होता है रिलीज हो जाता है, ठीक है। वाटर जब बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, तो वो जो वाटर होता है उस वाटर के अंदर फूड होता है, जो रेस्पिरेटरी गैसेस वगैरह होती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सबका एक्सचेंज जो होता है वो वहीं पर हो जाता है। तो सर्कुलेशन इनका कैसा होता है, water is circulated in the body, they have a special canal system, when the water enters the body of the poriferans, सेल एब्सॉर्ब करते हैं फूड को, रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, the body cavity of the sponge is lined by a special type of cell known as conocyte or collar cells, and these cells are specialized cell for the digestion। तो digestion में कौन से सेल हेल्प करते हैं, कोनोसाइट और यू कैन से अ कॉलर सेल हेल्प फॉर द डाइजेशन, ओके। एंडोस्केलेटन, इनका जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन किसको बोलते हैं आपको पता है ना, स्केलेटन जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क देते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सपोर्ट करने में। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं, जो वो बोन्स है वो हमारा क्या है, स्केलेटन है। सो दे डोंट हैव बोन बट दे हैव अ कैल्केरियस और सिलिकॉन के बने हुए स्पिक्यूल्स होते हैं, या फिर प्रोटीनेशियस स्पॉन्जिन फाइबर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो इनको क्या करते हैं, एंडोस्केलेटन, इंटरनली स्केलेटन बनाते हैं। स्केलेटन भी बेटा दो टाइप के होते हैं, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो है वी हैव एंडोस्केलेटन, हड्डियां हमारी कैसी बॉडी के अंदर है, बाहर नहीं है। कॉकरोच जो है, कॉकरोच में आपने देखा होगा कि ऊपर से कवरिंग होती है, ठीक है। कॉकरोच की बॉडी में क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। ये रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं, दोनों मेथड से कहते हैं, असेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल मेथड से भी ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, गेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है, एग और स्पर्म जो होता है उनका यूटिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट इनकी कैसी होती है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लो। ये एग है, ठीक है, एग से डायरेक्टली, जैसे कि ये एक एनिमल है, ठीक है, इसके एग से अगर डायरेक्ट इसके जैसा एनिमल बन गया, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। बट इनमें ऐसा नहीं होता, एग से क्या बनता है, लार्वे बनता है। फिर ये लार्वे जो होता है ये एग्जैक्टली इनके जैसा नहीं दिखता है, ठीक है। ये लार्वे आगे जाकर के इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं और फिर उसके बाद में ये एडल्ट जो है वो इसमें कन्वर्ट होता है। तो दिस काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो आप स्पॉन्जेस में या फिर पॉरीफेरेंस में क्या देखोगे कि इनमें कैसी होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। दे हैव अ पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का पावर का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो आपने लिजर्ड देखी होगी, लिजर्ड जब व्हेन ही सेंस अ डेंजर, जब उसको ऐसा लगता है कि आई एम इन अ डेंजर, तो लिजर्ड क्या करता है, वो अपनी टेल जो होता है वो कट कर देता है। एंड यू विल सी आफ्टर अ फ्यू डेज वो उसकी टेल जो होती है वो वापस से आ जाती है।
सो दिस इज अ रीजनरेशन। तो उसी तरीके से स्पॉन्जेस की बॉडी का अगर कोई पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, कट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, रीजनरेट उस पार्ट को कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज यूस्पोंजिया स्काइफा, यूस्पोंजिया को बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। इस तरीके से ये देखो, ये है यहाँ पर वीनस फ्लावर बास्केट, जिसको हम यूप्लैक्टिला कहते हैं। इनको डेकोरेशन में यूज किया जाता है, एज अ बाथ स्पॉन्ज यूज किया जाता है। Okay, so here we finished the phylum Podifera. Next we are going to study phylum Cnidaria, which is also known as the Coelenterata. These are the एनिमल्स जो नीडेरिया से सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बॉक्स जेली, मून जेली, सी एनिमोन, फाइजेलिया। जेलीफिश के बारे में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, दे ऑल बिलोंग्स टू नीडेरिया। जेलीफिश बहुत फेमस है, एवरीवन नोज अबाउट द जेलीफिश। एक्चुअली वो जेलीफिश नहीं होती है, इट बिलोंग्स टू द सिलेंट्रेटा नीडेरिया फैमिली। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये कहाँ रहते हैं, दे आर ऑल्सो एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, फ्यू जो होते हैं फ्रेश वाटर फॉर्म होता है इनका। ठीक है, ये सेसाइल होते हैं और कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं। सेसाइल का मतलब एक जगह पर रहने वाले, यहाँ वहाँ मूव करने वाले नहीं। ठीक है, नीडोब्लास्ट, इनके पास में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसे नीडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल बोलते हैं। ठीक है, इनके जो टेंटिकल्स आप देख रहे हो ना, दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ नीडोब्लास्ट सेल। ठीक है, ये एंकरेज के लिए होता है और अपने आप को डिफेंस करने के लिए होता है। बॉडी सिमेट्री की अगर बात करते हैं तो दे हैव रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक पता है ना, दे हैव एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। पॉरीफेरेंस और आल्सो डिप्लोब्लास्टिक एंड दे आर आल्सो डिप्लोब्लास्टिक। इनकी बॉडी कैविटी कैसी होती है, इनकी बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। ये जो कैविटी होती है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, और इनके अंदर कैसा होता है, ब्लाइंड बॉडी सेक प्लान होता है। ब्लाइंड बॉडी सेक प्लान क्या होता है आपको पता है ना, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किए थे। देयर इज ओनली सिंगल ओपनिंग फॉर द इजेशन आल्सो एंड फॉर द इंजेशन आल्सो। सिंगल ओपनिंग, ठीक है, फॉर एक्सटीरियर, ठीक है, फॉर द इंजेशन एंड इजेशन दोनों के लिए। बॉडी फॉर्म्स कैसे होते हैं, दो टाइप की बॉडी फॉर्म होती है इनकी। सिलिंड्रिकल फॉर्म जिसको पॉलिप कहते हैं, जैसे कि हाइड्रा होती है, और अम्ब्रेला फॉर्म जो होती है जेली के जैसी, इस तरह से ये जो होती है जेली फिश के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेड्यूसा बोलते हैं। डाइजेशन कैसी होती है, कुछ एनिमल में एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है, कुछ में इंट्रा सेल्यूलर होती है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब पहले ही ये लोग क्या करते हैं, ये सेल है या बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे फूड है। तो ये जो फूड है, यहाँ से ये लोग सेल में से क्या करेंगे, कुछ भी मतलब केमिकल वगैरह जो है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह को रिलीज करके फूड को बाहर ही कैसा ब्रेक डाउन करके सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करके उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे। सो दिस इज नोन एज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रा सेल्यूलर जैसे हम में होता है, फूड का इंटेक करके इंटरनली उसको क्या किया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है। तो दिस इज इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ओके, रिप्रोडक्शन, नीडेरियंस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली आल्सो एंड असेक्सुअली आल्सो। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है। बडिंग आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, हाइड्रा में किस तरह से होती है। रीजनरेशन के थ्रू होती है। रीजनरेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से ये स्पाइरोगायरा का एग्जांपल रीजनरेशन में ज्यादातर पढ़ा जाता है कि ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, नहीं सॉरी, दैट इज फॉर द एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन में बॉडी का एक पार्ट जो होता है वो टूट जाता है और वो पार्ट से जो होता है पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेवलप होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द गैमेट। गैमेट कौन से होते हैं, एग एंड स्पर्म्स। ठीक है, इनके अंदर मेटाजेनेसिस होता है और इसके एग्जांपल्स है हाइड्रा, जेलीफिश, फाइजेलिया, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, the last phylum for today is phylum Ctenophora. ठीक है, the member of this phylum are commonly known as comb jellies and sea walnuts कहा जाता है इनको। ठीक है, they are commonly known as comb jellies and sea walnuts। ठीक है, नीडोब्लास्ट इनके अंदर क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये माइनर फाइला है, इसमें बहुत ज्यादा एनिमल्स अभी तक जो है वो डिस्कवर नहीं हुए हैं। एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल, फ्रेश वाटर नहीं होते हैं, ये आपको सिर्फ समंदर में मिलेंगे। दे आर फ्री स्विमिंग एनिमल्स, ये सेसाइल नहीं होते हैं, ये फ्री स्विमिंग होते हैं। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो डिप्लोब्लास्टिक, रेडियली सिमेट्रिकल। इनकी बॉडी जो होती है, इनमें भी ब्लाइंड बॉडी से एक प्लान होता है।
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका लोकोमोशन जो रहता है, इनकी बॉडी में कैसे रहते हैं, 8 रोज जो होते हैं सीलियरी कोम प्लेट्स होते हैं जिससे ये लोकोमेट करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है ये समझना होगा आपको। जैसे कि अगर आप ओशन के अंदर काफी डीप जाते हो तो वहां तक सनरेज जो होती है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वहां पर पूरा ब्लैकआउट होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है। तो वहां पर इतने डीप जोन में जो एनिमल्स रहते हैं, जो फिशेस रहते हैं, उनके अंदर नेचुरली क्या होता है, कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जिनसे लाइट निकलती है, एंड दिस कैरेक्टर इज नोन एज, और ये होता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है बिकॉज ये काफी डीप में मिलते हैं। इनमें एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्यूलर दोनों डाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल होता है, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और इनके पास में स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको कोलोब्लास्ट सेल बोलते हैं, वो स्टिकी सेल्स होते हैं जो प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल में आपको टीनोप्लेना जो है वो एग्जाम्पल याद रखना है। सो हियर एट लास्ट आपको ये चार्ट दिया है, ये फीचर्स है, और ये तीनों फाइलम्स जो आज आपने पढ़े हैं, पोरीफेरा, नीडेरिया एंड टीनोफोरा, इनके अलग अलग जो आपने फीचर्स पढ़े हो वो उसको कंपैरेटिवली यहाँ पर दिया है। तो आप अगर इसको, ये चार्ट को याद रखते हो तो आपके लिए आंसर लिखना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इट इज सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पोरीफेरा, सेल्स होते टिश्यू नहीं बनते, बट नीड एरिया एंड टीनोफोरा में टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री कैसी है, इनमें असिमेट्रिकल, इन दोनों में रेडियल। तो आपको आंसर लिखने में बहुत आसानी होती है अगर आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हो, ठीक है। I think that's it for today, and in our next session, in our next lecture, we are going to study the next phylum.